Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. क्या हो रहा था? हाँ, good morning. Okay. We were doing change management. आज हम तुम लोगों को change management थोड़ा सा कल explain कर दिए थे, और आज थोड़ा सा लिखवा देते हैं change management. Start writing. The term change refers to, और वीडियो ऑन करो सब, ऐसे डॉर्मेंट होगी क्लास मत करो सुबह सुबह के टाइम पे. The term change refers to, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है. देखो, the term change refers to क्या बता रही हैं? change management, management of change. Yes, ma'am. हेडिंग तो, और कैमरा ऑन करो सब लोग. देखो, management of change, as I explained it to you in the last class, that change is something. Now the question is not that whether an organization will encounter any change or not. अब क्वेश्चन ये है कि जो चेंज आया उससे कोप अप किया कैसे जाएगा. तो काफी सारा फैक्टर्स होता है चेंज का, काफी सारा रीजन होता है चेंज का. चेंज बहुत सारे टाइप्स का होता है, कल भी क्लास में बताए. प्रोएक्टिव चेंज और रिएक्टिव चेंज, प्लान्ड चेंज, हाँ प्लान्ड चेंज या अनप्लान्ड चेंज. ओडी पढ़े हो तुम लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ओडी प्लान्ड चेंज होता है कि अनप्लान्ड होता है? Plan change. Plant change. लिखो लिखो, मैनेजमेंट ऑफ चेंज. प्लीज म्यूट कर लो जिसका भी आवाज आ रही है. मैनेजमेंट ऑफ चेंज. The term change refers to
An alteration in a system the term change refers to an alteration in a system, whether physical, biological, or social. Whether physical, biological, or social. Therefore, organizational change is the alteration Therefore, organizational change is the alteration of work environment, in organization. It implies a new equilibrium Ma'am, it apply. It implies मतलब जब भी चेंज होगा तो आप कोई नया चेंज आएगा, यानी पुरानी चीजों में थोड़ा डिस्टरबेंस तो क्रिएट होगा ना. दिस मीन्स कि ओल्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और न्यू इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेगा, वही लिखा हुआ है. इट इम्प्लाइज अ न्यू इक्विलिब्रियम between different components of the organization. Between different components of the organization, like technology, structure, job design, and people. Technology, structure, job design, and people. अब देखो इतना लिख लिए. देखो किसी भी चीज का ऑर्गेनाइजेशन में कोई नेचर होता है. अगर चेंज के नेचर के बारे में बात करो तो इसके नेचर को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी चेंज होगा तो तुम जिस तरीके से पुराने रूप में स्टेबल थे वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा ना, चेंज होगा. अगर नई टेक्नोलॉजी आई तो तुम लर्न करोगे, तुम उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो चेंज आएगा. यानी जो भी पुराना मेथड है, जो पुराना इक्विलिब्रियम है, वो शिफ्ट करेगा नई इक्विलिब्रियम की तरफ, राइट. और चेंज ऑफ नेचर में और क्या होगा, और ये होगा कि जब भी कोई चेंज होता है तो जरूरी नहीं है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो. ये चेंज किसी एक पार्ट में भी हो सकता है, किसी एक डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, और वहां से वो चेंज ट्रिगर करे बाकी चीजों की तरफ. गॉट इट? यस मैम, मतलब बाकी चीज भी अफेक्ट होगा अगर एक डिपार्टमेंट में चेंज होता है. हाँ, देखो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. Nature of organizational change. Number 1. When change occurs in any part of the organization, it disturbs the old equilibrium necessitating the development of new equilibrium. It disturb के बाद में It disturbs the old equilibrium. Necessitating the development of new equilibrium. The development of new equilibrium. Done till here? Yes ma'am. The type of new equilibrium
The type of new equilibrium depends upon the degree of change and its impact on the organization. Point number 2. Any change may affect the whole organization. Any change may affect the whole organization, part of the organization, and some parts may be affected more, while the others may be affected less. Some parts may be affected more, and some parts may be affected less. Done till here? Yes, ma'am. Okay. इसका मतलब जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है, जरूरी नहीं है कि हर पार्ट उस ऑर्गेनाइजेशन का इक्वली इफेक्ट हो. There could be some parts which are affected more, while there could be the other parts which are affected less. अब ये बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज आता रहता है, क्या वो सिर्फ एक बार आता है प्लान करके, या ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कंटिन्यूअस प्रोसेस है. देखो, छोटा मोटा चेंज, अगर बीबीएम थर्ड ईयर की बात करो, तुम अपनी क्लास की बात करो, छोटा मोटा चेंज जो होता है, जो तुम्हारा पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है पढ़ने का, जैसे ठीक है आज के लिए तुम्हारा ये क्लास ऑनलाइन हो गया, ठीक है आज के लिए, क्योंकि there was some arrangements that were supposed to be done. For that your classes needed to be shifted on online mode. लेकिन अगर इसमें कोई बड़ा चेंज आ जाए, जैसे कि तुम्हारी बिल्डिंग शिफ्ट हो जाए यहाँ से कहीं और, ये जो छोटा सा चेंज था, जैसे आज के लिए ऑनलाइन क्लास ट्रांसफर हो जाना, ये तो तुम लोग एब्जॉर्ब कर लिए ना, इतनी दिक्कत नहीं हुई इसको एब्जॉर्ब करने में, नहीं. लेकिन यहाँ से अगर बिल्डिंग शिफ्ट हो जाए राजेंद्र नगर में, ये दिक्कत होगी? अभी तक हो रही है. दिक्कत होगी. दूसरी बात कि अगर टीचिंग पेडागॉजी चेंज हो जाए, यानी पढ़ाने का तरीका, आज तक तुम जिस मेथड से पढ़ते आए, ऑनलाइन मेथड से या ऑनलाइन मेथड जो पढ़ाने का तरीका है, मान लो कि वो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाए पढ़ने का, तो तुमको साइकोलॉजिकली थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा ना. हो सकता है कि वो मेथड इस मेथड से बेटर हो, लेकिन द चेंज ऑलवेज कम्स विद सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. चेंज को एम्ब्रेस करना इतना आसान नहीं होता है. अंडरस्टूड? इसीलिए चेंज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कुछ छोटे छोटे चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वो चेंजेस एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, लेकिन जो बड़े चेंज होते हैं उनमें ज्यादा एफर्ट्स लगता है उस चेंज को एम्ब्रेस कराने में. जैसे कि टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी चेंज हो जाए, तो नई मशीन को तुमको चलाने में दिक्कत होगी ना, रेजिस्टेंस होगा, ट्रेनिंग होगी, सब कुछ एक नए इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट करेगा. यही चीज है. लिखो थर्ड पॉइंट, organizational change is a continuous process. Organizational change is a continuous process. However, some changes which are of minor type may be absorbed by the existing equilibrium while other ones may require special efforts.
while other ones may require special efforts. Okay, ये था nature of organizational change. Now we will look into the factors that affect organizational change. ये factors कल भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम एक क्लास लेक्चर पे रखते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट इनग्रेन हो जाए, तो लिखते वक्त ज्यादा समझ में आता है. देखो, factors affecting organizational change. See, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्या वो एक आइलैंड होता है अपने आप में जो अकेले ऑपरेट करता है? नो मैम. आइलैंड को देखियो, बीच में एक लैंड होता है, बाकी सब जगह से पानी होता है, ठीक है, Yes, उसको ma'am. बाहर से मतलब नहीं है. तो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन आइलैंड, इट इज वर्किंग in close association with the environment in which it is functioning. There are many factors that affect the organization, and that is why the management of change becomes very very important. So right now, दो फैक्टर एरो देके लिख लो, एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल फैक्टर में लिखो, नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल चेंज. टेक्नोलॉजिकल चेंज. Number 2, change in marketing conditions. Change in marketing conditions. Number 3, social changes. Number 3, social changes. Number 4, political and legal changes. Political and legal changes. लिख रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंटरनल फैक्टर्स में लिखो. आप इंटरनल फैक्टर्स के नीचे लिखो, नंबर 1, चेंज इन मैनेजरियल पर्सनल. Change in managerial personnel. Ma'am, managerial. Personnel. Change in managerial personnel. Next, मतलब point number 2, deficiency in existing organization. Deficiency in existing organization. ओके, चेंज इन मैनेजरियल पर्सनल मतलब कल क्लास में बताए थे, बताओ जरा. मतलब अगर मैनेजर चेंज हो जाता है तो उसके साथ भी उससे भी मतलब इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, गुड, वेरी गुड. चेंज इन मैनेजरियल पर्सनल मतलब मैनेजर तुमको मैनेज करता है थ्रू हिज फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अगर मैनेजर चेंज होगा तो उसके काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा. वो चेंज होगा तो वो उस चेंज को ट्रिगर करेगा तुम्हारे अंदर भी, और वो वही चेंज तुमसे भी एक्सपेक्ट करेगा. That is why a change in manager might lead to change in the working style, which again needs efforts on your part. Second is deficiency in existing organization. Deficiency in existing organization का मतलब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में शायद स्किल्ड लोग नहीं है. तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जो जनरल मास है, यानी मोर परसेंटेज ऑफ पीपल, दे आर ऑफ ओल्ड एम्प्लॉइज, पुराने एम्प्लॉय है.
पुराने एम्प्लॉयज को नए चीजों में या नए मेथड्स में कोप अप करने में थोड़ी दिक्कत होती है। एंड यू नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू नो कि जो पुराने लोग होते हैं वो अपने पुराने मेथड्स पे ही स्टिक करना चाहते हैं, होता है ना? यस Yes, मैम। ma'am. वो जल्दी चेंज नहीं होना चाहते। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं चलती है। जैसे एलआईसी के डूबने का एक बहुत बड़ा कारण, एलआईसी एक टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंश्योरेंस की इतनी बड़ी कंपनी थी, आज वो उसमें जो गवर्नमेंट ने आईपीओ ऑफर किया या जो उसमें जितना भी उसका रिवाइवल के लिए काम हो रहा है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि उसके सारे एम्प्लॉयज ओल्ड हो चुके थे, ठीक है, और वो चेंज एम्ब्रेस नहीं कर रहे थे। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज नई टेक्नोलॉजी ला रही थी, बेटर सर्विस ला रही थी, और आप और हम एज अ कस्टमर हमेशा चाहेंगे कि मेरा काम आसान होगा ना? तुम ये चाहोगे कि उस बैंक में खाता खुलवाओ जो तुम्हारे घर पे आके खाता खोल दे, जिसमें तुम अपने फोन से काम कर लो, बैंक नहीं जाना पड़े, होगा ना? एज अ कस्टमर हम लोग यही चाहेंगे ना? Yes, ma'am. यस मैम। तो वो एलआईसी का भी एक बहुत बड़ा कारण यही था कि ओल्ड एम्प्लॉयज थे, दे डिड नॉट वांट टू यू नो मेक रिफॉर्म्स, दे डिड नॉट वांट टू रिसोर्ट टू द न्यूअर टेक्नोलॉजी। तो वो पुराना मेथड्स होते होते वो मार्केट में थोड़ा उसकी पकड़ कम हो गई, और जो नई इंश्योरेंस कंपनीज आई वो इंश्योरेंस में बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग किया, बहुत अग्रेसिवली वो कस्टमर को अपना कस्टमर बेस बढ़ाने में लग गई। तो ये डेफिशिएंसी होती है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये लगता है कि स्किल नहीं है तो आपको या तो बाहर से लाना होगा या फिर ट्रेनिंग देनी होगी, लेकिन चेंज तो लाना ही होगा। ये चीजें चेंज ट्रिगर करती है। ओके ना, देखो पहला पॉइंट डील करो। पहला पॉइंट क्या है? टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज का क्या मतलब होता है? टेक्नोलॉजी चेंज से होता क्या है ये बताओ जरा। क्यों इतना हाहाकार मचा हुआ है? टेक्नोलॉजी अपग्रेड कीजिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कीजिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इंडिया इतना इन्वेस्ट कर रही है, फॉरेन से टेक्नोलॉजी मंगा रही है, क्या कारण है? काम आसान हो वो और का वर्क इजी हो मैम। सिर्फ इजी के लिए? कंपटीशन बरकरार रहे। कैसे कैसे कंपटीशन बरकरार रहेगा? हाँ, कोई बोल रहा था कॉस्ट के बारे में, कौन बोल रहा था? Yes, ma'am. Cost reduction के लिए भी. Yes, cost reduction is the major factor behind technological change. एक बार टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने में पैसा लगता है, लेकिन वो मैनपावर यूसेज बहुत हद तक कट डाउन कर देती है। टेक्नोलॉजी इज फास्ट, सो जो काम मैन्युअली शायद 8 घंटे में हो सकता है वो टेक्नोलॉजी लेकर के 4 ही घंटे में हो। नई मशीन प्रोडक्शन में आती है ना? यस मैम। Efficiency भी increase. तुमको याद है जैसे मम्मी लोग या उसके पुराने टाइम पे रेडीमेड्स मम्मी लोग घर में स्वेटर बुनती थी, ठीक है, वो सस्ता पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे जो रेडीमेड स्वेटर्स है वो भी कितना सस्ता आने लगा है, आने लगा Yes, है ना? ma'am. कैसे आने Yes, लगा? ma'am. वो टेक्नोलॉजी के कारण, मशीन के कारण, ठीक है। मशीन से जो बुनाई होती है वो सस्ती पड़ती है, पहले वो मैनुअल होती थी, इसीलिए इतना महंगा होता था स्वेटर। अब इतना सस्ता होने लगा कि आपको अगर कोई बहुत कम रेंज में भी स्वेटर खरीदना चाहे रेडीमेड तो वो अफोर्डेबल है उसके लिए। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव होती है और कंपटीशन पोजीशन को, तुम्हारे कंपटीशन पोजीशन को स्ट्रेंथन करती है। इसीलिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पीछे इतना परेशान रहते हैं लोग। अंडरस्टूड? अब तो टेक महिंद्रा वगैरह एचआर में भी इतना सारा रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेथड लेके आई है, वो एज देगा उसको दूसरे कंपनी से। नेक्स्ट इज चेंज इन मार्केटिंग कंडीशंस। मार्केट एक जैसा रहता है? नो मैम। नो मैम। नहीं रहता है, Flexible. डायनामिक होता है। दूसरी बात, तुम ऐसे ही सोचो, तुम एज अ कस्टमर सोचो ना अपने बारे में। अभी विमेन अपैरल यानी विमेन के कपड़े को इंडिया में एक बहुत डायनामिक मार्केट कंसिडर किया जाता है। जैसे देयर वाज अ टाइम जब कॉटन का सूट पीस बहुत ज्यादा फैशन में था, आज से 15-20 साल पहले। अब उससे कम दाम में तुमको कुर्ती और लेगिंग्स मिलती है। यस मैम।
टेलर्स ये कंप्लेन करते हैं, बुटीक वाले ये कंप्लेन करते हैं कि अब इतने सस्ते दाम में और इतना बढ़िया मटेरियल लोगों को रिलायंस ट्रेंड में या फिर बाकी भी जो बिग बिग बाजार ने भी जो एक लॉन्च किया था अपना, सृष्टि करके एक ब्रांड था उसका, तो वो 350, 400, 500 में वो कुर्ती लेकर के आए थे, प्योर कॉटन कुर्ती एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस एंड द मटेरियल वाज आल्सो वेरी गुड। ये याद रखिएगा कि क्वालिटी खराब होगी तो आप कितना भी सस्ता मटेरियल बेचेंगे, आपका मटेरियल ज्यादा दिन नहीं बिकेगा। सो द क्वालिटी हैज टू बी वर्कड ऑन। लेके आए, जहां 500 रुपए तुम सिलाई दोगे वहां तुमको 700 रुपए में रेडीमेड मटेरियल मिल जा रहा है, तुम जाओगे सिलाई करवाने? नो मैम। नहीं। मार्केटिंग कंडीशन चेंज हुआ। तुम एज अ बायर अपने बारे में सोचो, जिस चीज का फैशन है, अगर सपोज करो कुर्ती प्लाजो का फैशन है, जो कंपनीज अपैरल में इन्वॉल्व हैं वो अगर वही बनाते रह जाएंगी जो 10 साल पहले था, तो उसका मटेरियल बिकेगा? नो मैम। नहीं, तुम्हारा तो टेस्ट चेंज हो गया है। इसीलिए Yes. मार्केटिंग कंडीशंस चेंज होती है, उस हिसाब से भी तुमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना होगा। और मार्केट एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो उसको। अंडरस्टूड? Yes मैम। नेक्स्ट है सोशल चेंजेस। सोशल में भी ये होता है कि जैसे जैसे सोशल डेमोग्राफी, मान लो इसका एक एग्जांपल तुमको बताती है, सोशल डेमोग्राफी बदलता है। आप खुद में सोच के देखिए, सब लगभग आप लोग 19, 20, 21, 18 इस रेंज में होंगे एज में। आपका जो चॉइस ऑफ क्लोथ्स या चॉइस ऑफ फूड खाने का भी, या चॉइस ऑफ एनीथिंग एल्स आज से पहले था, जैसे कि 9th 10th 8th में तुम लोग रहे होगे, आज वैसे ही सोचते हो? नो मैम। नहीं। आज से जब 5 साल और हो जाओगे, जब नौकरी चाकरी में लग जाओगे तुम लोग, तो तुम्हारा टेस्ट ऑफ क्लोथ्स, तुम्हारा टेस्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? तुम अभी जंक फूड के बहुत शौकीन हो, वंस यू क्रॉस अ सर्टेन एज यू विल बिकम हेल्थ कॉन्शियस। ये होता है, ठीक है? यू विल बिकम हेल्थ कॉन्शियस बिकॉज दैट इज द टाइम eating all these or eating all this having all this habit will take a toll on you। कहने का मतलब ये डेमोग्राफी चेंज होता रहता है सोसाइटी में, उस हिसाब से तुमको ये चीज समझना होगा। समझ में आई बात? Yes मैम। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का मार्केट इंडिया में है, लेकिन फ्रूट जूसेस ये सोच करके लाया गया मार्केट में कि इंडियन कस्टमर को और ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो दे विल गो आउट फॉर फ्रूट जूसेस, व्हिच इज ट्रू। केलॉग्स जब इंडिया में आया तो वो यही एडवर्टाइज किया था कि बहुत न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है, बहुत कम टाइम में बनता है, हालांकि बहुत मार्केट उसका चला है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल एंड लीगल चेंजेस। ये तो एक्सप्लेन कर दिए थे कल क्लास में, Yes मैम। है ना? लीगल में जितना लॉ है आसपास, तुम्हारे कंपनी लॉ है, फैक्ट्रीज एक्ट है, माइंस एक्ट है, मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट है, मैटरनिटी लॉ है, चाय बागान पे काम करने वाले के लिए रूल रेगुलेशन है, तुम्हारा ईएसआई है, पीएफ है, सोशल सिक्योरिटी, सब कुछ उससे तुमको गाइड करना होगा और तुमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो इम्प्लीमेंट तो करना ही होगा। पॉलिटिकल मतलब सरकार, अगर सरकार का अपना कोई फैसला होता है किसी चीज को लेके, तो तुम उसमें भाई कुछ नहीं कर सकते हो। ऑल यू कैन डू इज यू कैन चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन, you can inculcate a change in your organization to cope up with the change outside। okay? Yes मैम। चेंज के बारे में एक और चीज हम तुमको बताए थे कि चेंज का डोमिनो इफेक्ट होता है, यानी एक चेंज अगर है वो ट्रिगर करता है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका जिसका इंटर में साइंस होगा वो जानते होंगे। Yes मैम। No, no. Yes मैम। चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि जैसे चेन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, जैसे जो साइंस नहीं पढ़े उनको, क्लास में एक बच्चे को पानी पीना है, अब सबको पानी पीना है, सबको बाहर जाना है, दिस इज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन मतलब एक किसी ने कुछ किया, अब सबको वो चीज ट्रिगर करेगी, सब जगह वो चेंज आएगा। किसी एक पार्ट में चेंज आया, अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे वो चेंज ट्रिगर कर देगा। दिस इज नोन एज चेन रिएक्शन। जैसे देखो, कोई नई टेक्नोलॉजी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आई, अब वो नई टेक्नोलॉजी आई
तो जॉब का कंटेंट बदलेगा। जिस तरीके से तुम वो जॉब करते थे पहले, टेक्नोलॉजी के पहले, और जिस तरह काम करते हो अब, बदलेगा। यस मैम। बदलेगा। जो पुराना जॉब है यानी टेक्नोलॉजी के पहले जो जॉब तुम कर रहे थे वो रिप्लेस हो जाएगा न्यू मेथड से। यस मैम। देखो ह्यूमन रिसोर्स में कैसे धीरे धीरे चेंज आ रहा है। उसके बाद अगर ये न्यू मेथड से रिप्लेस हो गया तो जो पुराने लोग थे या तो वो उनको हटाओ तुम क्योंकि वो काम नहीं कर पाएंगे नई मशीन से, या फिर उनको ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग दो। अब देखो एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट होता है, ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है कि आपने टेक्नोलॉजी आकर के लोगों को हटाने लग गए। तो एडवाइजेबल यही होता है कि तुम टेक्नोलॉजी का तुम उसको ट्रेनिंग दो। ठीक, तो ट्रेनिंग दो तो जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब का स्ट्रक्चर बड़े चेंज होगा, इससे स्ट्रक्चर Yes, चेंज ma'am. होगा, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, लोग चेंज हुए। अब देखो अगर नए लोगों को ट्रेन किया या नए लोगों को रिक्रूट, पुराने लोगों को ट्रेन किया या नए लोगों को रिक्रूट किया, इंटर रिलेशनशिप जो पुराने लोगों का था वो चेंज हुआ। Yes, ma'am. तुम्हारे साथ बीबीएम थर्ड ईयर में अभी बाहर का नया एडमिशन में 5 बच्चा आके बैठ जाए, तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम पहले अपने फ्रेंड्स के साथ था वो चेंज होगा। यस मैम। चेंज होगा ना, Yes, ma'am. क्योंकि पुराने रिलेशन सूटेबल नहीं होंगे अब ऑर्गेनाइजेशन में, नए जॉब के कारण, नई मशीनरी के कारण, नए ट्रेनिंग के कारण, फ्रेश रिक्रूट्स के कारण तुम्हारा पुराना रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। This Yes, is how change at one place in the organization triggers change in the other parts of the organization also, which is known as domino effect. ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. yes, ma'am. प्लान चेंज क्या होता है? जल्दी बताओ। प्लान चेंज माने सोच समझ के किया गया, you have already planned it, that Yes, how the yes, ma'am. changes are to Yes, be brought ma'am. about, change तुमको कैसे लाना है धीरे धीरे ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो, this is plan change। देखो फैक्टर्स इन प्लान चेंज आर, प्लान चेंज लिखो पहले हेडिंग और उसके बाद देखो फैक्टर्स इन प्लान्ड चेंज आर structure, number 1 structure, number 2 task, number 3 people, Ma'am, number 2. task, T-A-S-K, task, number 3 people, and number 4 technology। हो गया। अब देखो चेंज दो टाइप का होता है, प्लान्ड और अनप्लान्ड, और दो तरीके से चेंज किया जाता है, रिएक्टिव एंड, जल्दी बताओ, प्रोएक्टिव। लिखो Proactive. रिएक्टिव चेंज किसको कहते हैं, लिखो रिएक्टिव चेंज का डेफिनेशन लिखो, द चेंज फोर्स्ड बाय some factors, the change forced by some factors either external or internal, Forced by some factors either external or internal is called reactive change। is called reactive change। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन रिएक्टिव चेंज करती है आज भी। ओके Yes, ma'am. yes, अब ma'am. लिखो प्रोएक्टिव चेंज किसको कहते हैं, anticipation of likely behavior of the forces
Anticipation of likely behavior of the forces having impact on the organization will be an example of proactive change. Will be an example of proactive change. These organizations constantly interact with the environment to identify opportunities and threats. ठीक है, ये हुआ reactive और ये हुआ proactive change. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, चेंज मैनेजमेंट तुम लोगों का इतना ही था, इतना ही करना था तुमको चेंज मैनेजमेंट. अब बाकी आप ये हम सारा बता दिए. अब बाकी जो तुम्हारे मॉड्यूल में होगा थोड़ा सा उसको पढ़ना. इट्स अ स्मॉल टॉपिक. With this we complete your syllabus of OB. Just hold down and attend your roll calls. सबको समझ में आया? चेंज वाला जो पार्ट था Yes, वो ma'am. तुमको इसलिए भी अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ओडी में भी हम बता चुके हैं. ओडी अगर फिर से रिवाइज कर लोगे एक बार तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा. अब सिर्फ रिवीजन करना बाकी. सबको रिवाइज करो. एवरीथिंग हैज बीन डन. रोल नंबर मैम 1. लीडरशिप एक बार पढ़ाइएगा ना. हाँ ठीक है, क्लास में बता. रोल नंबर 1, Yes, ma'am. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma'am, 7. 7. 7 Akansha, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ma'am, 27 present. Okay, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. आज नहीं आ रही है. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 46, ma'am. 46. 46. 47, 48, 49. 49, ma'am. 50, 51. Ma'am, 51. मैम 19 भी माही कुमारी में वो मैसेज किया. अच्छा ठीक है. Ma'am, 19 present. हाँ ठीक है भाई. मार्क योर अटेंडेंस. बैच 2 में रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. मैम 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यस मैम 10. Okay, 11, 12, 13, 14, 15, मैम 14. 14. Ma'am, 15. क्या 16? 15, ma'am. 15 प्रवीण. Yes, ma'am. ठीक.
16, 17, 18. Yes, ma'am. 16. Priyanshu. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Yes, ma'am. 26. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30. Roll number 19, Mahi. Okay. Ma'am, See you in the 26 next हो गया class. मैम. हाँ 26 हो गया. चलो. See you in the Ma'am. next class. हम leadership बता बोलिए बता दें. एक बार टॉपिक सारा बता दीजिएगा ना, ओबी और एचआरडी का, मतलब एग्जाम यस के मैम, कंफ्यूजन एग्जाम के पर्पज से. अच्छा ठीक है बता दें. आओ क्लास में. ठीक है. Yes, ma'am. ओके मैम. ठीक है. Thank you, ma'am. Have a good day all of you. थैंक यू मैम. हैव अ गुड डे मैम. सेम टू यू मैम.